सबसे ज़्यादा जो हम सीखते हैं ना वो फील्ड में जो हमें काम आएगी जो चीज़ वाले टीम स्पोर्ट्स. When you go on any assignment, you would not know anything. Panadol went into force majeure. There were pricing challenges in the country. वो सारे challenges are now over. तो जो profitability के हिसाब से जो चीज़ें मार्केट से गायब हो गई थी, now they're back. Panadol के जो force majeure की वजह भी ये थी कि we were under the money, यानी कि जो हमारी retail price थी उससे कहीं ज़्यादा थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंपनी वी डिसाइडेड कि हम इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते, हम सप्लाई करते रहेंगे. एंड इंशाल्लाह इन 2025 देयर विल बी पैनाडोल वुमेन इन द मार्केट दैट्स एक्चुअली फॉर मेंस्ट्रुअल पेन. बट वी कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन दैट. वी कंटिन्यू टू डिलीवर. बाय फार हमारी सबसे ज़्यादा सप्लाई है. पाकिस्तान में कोई भी फार्मेसी अल्हम्दुलिल्लाह कैन नॉट रन विदाउट पैनाडोल. अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. इट्स अ प्लेजर. एंड यूजुअली जब सीईओज आते हैं तो वो कोट पैंट सूट शूट में आते हैं. व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड शर्ट, पोलो शर्ट? There's no story behind a polo shirt. I think the company that I represent, the company that I'm part of, the culture is very open. Anyone can wear anything. You have to be very comfortable. So most of us wear polos, jeans. So you aren't wearing coat pant in the meetings and जब ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल वी आर अ लिस्टेड एंटिटी से जो बोर्ड मीटिंग होती है या किसी डिग्नेटरी से मिलना है या किसी मिनिस्टर से मिलना है, सो देन ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर दोज सूट्स. बट जनरली बाय लार्ज हमारे यहाँ वी आर वेरी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. मैं आपको हमारे कल्चर के बारे में बताऊँ. हेलियन पाकिस्तान, आई कैन से दिस वेरी प्राउडली. We are the most, that's what I feel, we are the most flexible organization. You know, जो हमारी policies हैं कुछ या जो हमारा ways of working है, it's so flexible. Like Fridays is our mandatory work from home, even now. अच्छा. So we started that in COVID. So Fridays are mandatory work from home. उसमें कुछ लोग आते हैं, like for example कुछ supply chain के लोग, finance के लोग, वो आते हैं जब कोई काम है. और भी functions आते हैं if there is any work, but largely they're work from home. Other than that, the 4 days that we have, उसमें भी if anyone wants to opt for one work from home day, they can. Important stuff is the delivery. ये जो culture है ना, when it starts, शुरू में शायद कभी होंगे teething problems, but now when the process or the culture matures, तो अच्छी बात ये है कि everyone is more focused on delivery. और not just this, not just what we wear, not just the flexible working hours of work from home opportunities. Nobody has a room. Room? Even I don't have a room. You don't have a room? No, I don't have a room. HR doesn't have a room. Anybody, even those functions जहाँ पे confidentiality की ज़रूरत है, तो they can book a room, go in. So you sit in the open space? We work in the open space. Oh my team God. has been very kind to me कि मेरा जो desk है, although open desk है, वहाँ पे जो है मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं. तो otherwise, if there are in flexible working environment, आज कोई बैठा है, कल कोई बैठा है. That's how we are, and we are the largest, one of the largest in terms of volumes for pharmaceutical industry. Of course, I believe that. So this is a very open environment. लेकिन सी लेवल पे स्ट्रेटेजिक काम होते हैं तो उसके लिए जहनी सुकून एंड नो शोर शराबा एंड नो डिस्ट्रैक्शन एंड नो डिस्टर्बेंस, उसकी खातिर तो फिर कमरा चाहिए होता है ना. कभी कभार लाइक फॉर एग्जांपल ईयर एंड है, तो आजकल मैं ईयर एंड चेक इन्स कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, तो ज़ाहिर है मैं वो क्लोज डोर्स में करूँगा. सो आई बुक अ रूम, 45 minutes, 1 hour, then I go back to my same desk and they go back to their and also this way you're aware कि ऑफिस में क्या चल रहा है या एम्प्लॉयज़ के दरमियान क्या चल रहा है या वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, is it happening or not, and since you're part of their regular journey. तो अच्छा देखिए ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या गॉसिप हो रही है, क्या बात ये. No, I'm not saying gossip, I'm saying like work environment. Eventually, right? So in this work environment, because everyone is focused on the outcome, everyone is focused on the deliverable, बाकी issues होते नहीं है. I feel कि जो difference है ना between being available and approachable, I think one should be very easily approachable. I love And this. जो टीम है ना हमारी, फॉर एग्जांपल हमारी मार्केटिंग टीम है या हमारी सप्लाई चेन टीम है या कमर्शियल एक्सीलेंस टीम, एक्सपर्ट, all of them, they know when they need me or their line managers or any other function, they just have to stand up, go to their seat, talk to them. And this not only
allows you or enables you to have a cordial work environment, but जो synergy है ना, जो speed है, वो multiplier के साथ बढ़ती है. Wow. Then another thing is that in our company, एक और भी चीज़ है कि जो career development है because of this, because everyone works so closely, we have seen success stories where there is a girl जो उन commercial excellence से, जो trade marketing से, she is now part of marketing function. इसी तरह people move from one function to another. I started my career as a finance guy. I was the CFO of this company before I moved out of Pakistan and came back. Same company, but the level of risk that this company is willing to take is actually easier when you have the right environment, when you have that right approachability. Openness helps a lot. Wow. I think I will add more questions related to the work environment, because वो तो hot topic है, और मैं जहाँ पर ज़्यादातर we upload content is LinkedIn, of course. So these are the hot topics, and I will add or throw certain questions. True. But before that, I was actually watching 2 of your interviews. एक मुज़म्मिल के साथ आपने किया और एक अदील अज़हर के साथ आपने किया था. And I was actually listening to your story. And from your story मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मुझे लगता है कि मिल सकती हैं, और दूसरों को भी. तो लेकिन क्योंकि जिन्होंने वो इंटरव्यूज़ नहीं देखे, उनके लिए क्विक बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडी एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंटर्नशिप और जॉब, थोड़ा सा क्विक बताएं, फिर हम सवाल निकालते हैं. So I thanks for watching those. I think there are a couple of more that I went to, but they were more relatively around the professional side of it and then pharmaceutical side of it. जी. Now I started my schooling. I did my schooling from Habib Public School, जी. one of the big schools in Karachi. Huge soccer field, hockey fields, and more so hockey fields, swimming pools, gymnastics, and so I did my O-levels from there. उसके बाद I went to the FSNS school, did my A-levels वहाँ पे. I think after O-levels my life actually changed, where I started teaching, because that was the time when Habib Public School में the overall investment in terms of not just for me but for everyone in the school was around character building, not just about education. It's about how a man or a woman in the future will be able to lead. Was there like ratta system? Not ratta system, but more around sports, more around सबसे ज़्यादा जो हम सीखते हैं ना, वो फील्ड में जो हमें काम आएगी जो चीज़, वो है ग्रुप वाले टीम स्पोर्ट्स. You learn to lose, you learn to win. Or as individual, it's not what you can achieve. Agar, for example, if it's a team hai, तो आप 1-2 contribution, yes, there are days when you have a good day when one person or 2 people outplay each other. But in a team sport, that's where leadership comes in. That's where you learn. अगर एक गेम हारे हैं, 2 दिन बाद दूसरा गेम है, तो the team sport helps you. You think about your highs, you think about your lows, you think emotional about resilience built होती है. And Habib School में it was more around that character building, more around that sport, or mostly team sport. Hockey was the then I started when in my A-levels I wanted some funds. I come from a very humble background, so I started teaching. And जब A-levels हो गया तो उसके बाद IBA के साथ जो एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, वो इस तरह से हुई कि जब हम A-levels में थे तो वहाँ पे उस वक्त एक डिमेट्रिक लीग होती थी, आर्टिफिस, बैक देन आई एम टॉकिंग अबाउट 1997-98. तो आई मेट अ लॉट ऑफ IBA स्टूडेंट्स देयर, एंड तो मुझे वो बहुत. बट बिफोर दैट माई फर्स्ट dream of any professional education was always chartered accountancy. My late father also wanted me to be a CA because I applied for ICMA, CA, BCom. I did so. इसके बाद जब मेरे A-levels के बाद my journey was सुबह के वक्त CA की classes, दोपहर को ट्यूशन्स पढ़ाना, शाम को ICMA की classes. So then BCom and all those things. And तो आप CA ICA में साथ कर रहे थे. So back then जो cost and management accountancy के लिए requirement थी graduation, और CA के लिए requirement थी intermediate और high school. हाँ. मगर A-levels का फ़ायदा ये था कि CA में it was counted as intermediate, but ICMA में it was counted as graduation. So I was able to get into that. So I did both. I did BCom, then CA के 2 साल की जो foundation होता है उसके बाद I went to Ferguson, PwC.
my first kind of professional side of life. I joined PwC for AF Ferguson and Co. I think I've said this repeatedly. मुझे ऐसा लगता है कि when I went into Ferguson, I didn't know कि professional side क्या है. So I was there is an institute I kept के institutes थे Alhamd Academy में I went there. तो जब हम अलहम्द या ICMA के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में मैं गया, आई फील द मोस्ट अंडररेटेड इंस्टीट्यूशन है ना पाकिस्तान में, वो है AF फर्ग्यूसन या PwC और द अदर बिग फोर्स. मैंने जब वहाँ पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, इट वाज मोर देन 4 years ऑफ जर्नी विद देम, स्टार्टिंग फ्रॉम अ जूनियर हु कुड ओनली रिव्यू वाउचर्स to after doing my CA and ICMA and the graduation, then leading audit committees of board meeting, not leading, I mean sitting with them and discussing the control issues and challenges. So I think वो जो journey था वो that was my first financial professional side of the journey. What was the biggest learning at that time? Biggest learning के मैं ये था कि when you go on any assignment you would not know anything. तो जो ये चीज़ थी कि जब भी हम किसी भी क्लाइंट पे जा रहे हैं, चाहे वो कंसल्टिंग असाइनमेंट हो, रिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट हो, ऑडिट हो, एडवाइजरी हो, पहले दिन आपने ये पता है कि आपको कि आपने अगले 2 महीने 3 महीने क्या करना है, क्या डिलीवरेबल है, कैसे करना है, क्या होगा. दैट्स समथिंग दैट वी यूज्ड टू लर्न एंड टेस्ट एंड ट्राई ऑन दैट क्लाइंट. सो जो इन्वायरमेंट भी था ना वो भी उसी तरह डिज़ाइंड था. सो द सीनियर मैनेजर से मैनेजर पार्टनर्स, सीनियर मैनेजर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सीनियर्स, सेमी सीनियर्स, जूनियर्स, यू नो. सो वो पूरी एक हायरार्की थी एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रेन एवरीवन. सो देयर वर 2 things. One was how to make sure कि आप इंडिविजुअल को ट्रेन करके डेवलप करें एंड डिलीवरेबल जो कि क्लाइंट को चाहिए, जिसके पैसे भी लिए हुए, वो कैसे डिलीवर होगा. सो इन दैट हायरार्की दैट्स वेयर वी स्टार्टेड वर्किंग. एक जो कॉन्सेप्ट भी था ना कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट बिग फोर्स, तो आप ऑडिट या वो आता है कि यार दे आर मोर देयर फॉर टू जस्ट रिव्यू एंड टेल यू व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. PwC actually gave me the other side of it. How can you go in and contribute towards the greater good? I did a lot of restructuring assignments. Mizan Bank की incorporation के assignment पे था मैं. Mizan Bank, by the way, वो 2001 में Mizan Bank की incorporation हुई थी. So, like the question lies here कि were you intimidated during these times, because you said कि पता नहीं होता था और process पे ही we tend to understand कि कैसे होगा. तो वो जो कैसे का जवाब जब तक नहीं मिलता था तब तक how did you understood कि किस तरह से मुझे चलना है, या माइंडसेट कैसे ट्रेन किया, या किसी ने सिखाया? Every professional goes through this. So imagine जो मेडिसिन में जो डॉक्टर्स बन रहे हैं या जो स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, a time comes when from books to get into real body, और फिर देन एक के बाद दूसरा, पहले यू आर एन असिस्टेंट, मे बी सब सिजर्स पकड़ा रहे हैं मेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द सेम. And articleship के अंदर it's also very similar. Whenever we went into an audit or assignment or advisory, the good news was, the faith was that the seniors have done it in some other way or some other client. मैं भी आपको बता रहा था कि restructuring assignments होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो uncertainty होती थी वहाँ पे. So I don't know if you know, Society Generale used to be a bank in Pakistan. उसका लाइसेंस मीज़ान बैंक ने ख़रीदा एंड देन मीज़ान बैंक केम इनटू बीइंग इनकॉर्पोरेशन. आई वाज इन दैट असाइनमेंट एंड बिलीव मी, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एडवांसेस क्या होते हैं, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, बट आई न्यू कि देयर इज़ अ हायरार्की देयर एंड दे विल बी एबल टू टीच मी. एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम यू लर्न, यू टेस्ट एंड डिलीवर, एंड यू ऑल्सो क्रिएट दोज रिपल्स. और जस्ट एक असाइनमेंट नहीं, एक ऑडिट, देन दूसरे असाइनमेंट, देन कंसल्टिंग. सो इन दोज 3 to 4 months ऑफ असाइनमेंट, डिलीवरेबल तक यू लर्न अ लॉट. और नंबर ऑफ आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते थे. इन टर्म्स ऑफ अ लर्निंग साइड, देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वी यूज्ड टू बी गिवन. एंड देन
after a year or so, then you come into a reviewing position. You know, kind of you are the one who now has to lead the junior guys. So I think वो जो journey है ना, वो वहाँ पे क्योंकि as I said कि it's an institution, वो एक ways of working उस तरह से बन गया था. And also you said कि you know आप sports में थे and school itself tried to build the character, you know, character building है, emotional resilience है. I think a lot of students जिनको schooling times में ही emotional resilience build करने में help की जाती है, they are the professionals जो कि बहुत young age में ही you know they overcome a lot of challenges. Challenges की बात करनी है मुझे, लेकिन इससे पहले आप मुझे बता रहे थे that you know chartered accountancy आपने continue की. So and then you joined Sanofi? Then I went to Sanofi. In Sanofi, I met really great friends, made great mentors there. I was the financial controller for 4 sites. Then after the financial control, together with that, मेरा जो restructuring journey थी continued. So एक factory थी उनकी Wakend में that I had to sell or close down, and then I had to get an approval for another site. So Sanofi में I mainly did that. Learned a lot about operations, learned a lot about managing big sites in terms of operations, obviously helping my technical director Amjad Saab. After that I went to the ICI world. ICI mein, I was part of the petrochemical Pakistan PTL Limited. So I was the finance manager there. I joined as a controller, then became the manager. फिर ICI जो है वो ExxonMobil बन गया. So we did the change, then ExxonMobil से वो Lotte बन गया, तो फिर then that changed. So I was there for 3 years. And 3 सालों में I technically worked for 3+ organizations. Okay. Then I moved to GSK, GlaxoSmithKline. That was 2011. And then you forgot to switch. Yes. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ज्वाइन किया था तब उसी वक्त मुझे पता था कि शायद अब मैं यहाँ से जल्दी नहीं जाऊँ. कैसे पता था? That environment and the level of risk that people were willing to take there. I joined as the shared services, finance shared services, but I was given opportunity to work in supply chain, logistics, warehousing, demand planning, treasury. Then I was deputed into HR. 2012 में they had their management trainee program roll out करना था. So Mr. Bernie, Salman Bernie, now he works for House of Habib. I think one of the stalwarts of our industry. Then कुछ acquisitions हुई, उन acquisitions में I was part of it. Then 2015 में, early 2015, end of 2014, GSK और Novartis का एक kind of deal हुई globally, जिसमें कुछ businesses Novartis के पास चले गए, कुछ business GSK के पास आए. So largely ये वो जो consumer healthcare business था, GSK का और Novartis का वो merge हो गया. Okay. So I became then the Novartis ka integration lead for Middle East, North Africa and Russian countries. Then I became the CFO of the consumer healthcare business in Pakistan. The reason was कि उसको भी list कराना था. Then we had to acquire the Novartis side of the business, एक company बनानी थी. Because I had the restructuring experience, so I did that. Then I did it for 3.5 years. Then I moved to the UK company में. I was there for 2.5 years. I was leading consulting, internal advisory, restructuring assignments, audit in the UK. I was in charge for global consumer healthcare business और सारे businesses के finance, HR and procurement. उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया as a CEO in 2011 and I've been here since then. So Helion नाम क्यों change किया? Good. So Helion हुआ ये कि 2018 में जो मैंने आपको बताया ना 2015 में नोवार्टिस और जीएसके ने मिलकर कंज्यूमर हेल्थ केयर और ओटीसी बिजनेस, ओवर द काउंटर बिजनेस को मर्ज किया. देन 2018 में फाइजर का ओटीसी बिजनेस भी खरीद लिया. सो जो कंपनी बनी वो जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर जो ग्लोबली थी वो लिस्ट हुई लेटर पार्ट ऑफ 2022 में. और वो बन गई दुनिया की लार्जेस्ट सेल्फ केयर कंपनी और पाकिस्तान की लार्जेस्ट सेल्फ केयर कंपनी. उसका नाम है हेलियन. वी आर लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज. और ब्रांड्स में आपको बताऊँ, जब ब्रांड स्प्लिट है तो जीएसके के ब्रांड से थे सेंसोडाइन, पैनाडोल, इनो, हाइड्रोजोल, आइडेक्स पहले था. देन नोवार्टिस के ब्रांड्स थे CAC 1000+, वॉल्ट्रॉल, टी-डे, ये ब्रांड्स थे. काल्सान डी होता था, आप उसको कैल्शियम डी कहते हैं. और जो फाइजर साइड के ब्रांड्स थे उसमें एडविल, सेंट्रम, चैपस्टिक,
कैलट्रेट, ये सारे ब्रांड जो थे वो फाइजर साइड के. सो ये जब सब मर्ज हो गए, सो देन वी बिकेम द लार्जेस्ट सेल्फ केयर कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड वी आर द लार्जेस्ट सेल्फ केयर कंपनी और ओवर द काउंटर कंपनी और कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी इन पाकिस्तान. लवली लवली. इतने सारे सवाल आए थे जहन में और सारे उड़ गए अभी. But okay, so I was actually checking the share price in the morning and it is 820 right now. 820 I saw per share. 850 या 880 शायद कुछ in the 850? morning. Yeah. हाँ okay, my bad. हाँ 850. तो डिविडेंड कब दे रहे हैं? अच्छा देखें, वी आर अ लिस्टेड एंटिटी एंड देयर आर सर्टेन प्राइस सेंसिटिव क्वेश्चंस जो हम अवॉइड करते हैं, बट हमारी अक्टूबर में दिया है अभी लास्ट. हाँ. सो लास्ट क्वार्टर में वी गेव डिविडेंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स. देर इसलिए लगी, जो टर्न अराउंड था कंपनी का, आपने सुना होगा या आपके जो ऑडियंसेस हैं उन्होंने सुना होगा कि पैनाडोल वेंट इनटू फोर्स मेजोर. देयर वर प्राइसिंग चैलेंजेस इन द कंट्री. द गुड न्यूज़ इज़ दैट वो सारे चैलेंजेस आर नाउ ओवर. Yes. Most of the medicines are now decontrolled. The government has agreed to actually follow global best practices. और pricing जो है वो market forces पे छोड़ दी. Not all of them. जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो प्राइस कंट्रोल ही रहेंगे. देर अबाउट 472, विच इज़ फाइन, एंड देन द रेस्ट ऑफ देम आर डी कंट्रोल. तो जो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जो चीज़ें मार्केट से गायब हो गई थी, सिर्फ हाइलियन नहीं, सबकी नाउ दे आर बैक. ड्यूरिंग दिस चैलेंज जब ये बहुत सारे डिस्कशंस गवर्नमेंट के साथ चल रहे थे, तो यू नो वन फ्रेज दैट वाज बहुत ज़्यादा बोला डिस्कशन में आया या बोला गया, जो प्राइस उस दवा की पे करनी पड़ती है जो मार्केट में ना हो ना, उसकी कीमत सेहत से या ज़िंदगी से देनी पड़ती. सो आई थिंक प्राइसिंग इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट बट not more important than availability. Of course. And I think that's where things change. And now most of the medicines are available in the market. We are also available in the market. And दूसरा पैनाडोल के जो फोर्स मेजोर की वजह भी ये थी कि वी वर अंडर द मनी, यानी कि जो हमारी रिटेल प्राइस थी उससे कहीं ज़्यादा थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वी सेल अबाउट जो पैनाडोल के सारे वेरिएंट्स मिला के, इसमें पैनाडोल रेगुलर, पैनाडोल एक्स्ट्रा, पैनाडोल CF या CF डे, पैनाडोल एक्सटेंड, पैनाडोल नाइट, पैनाडोल अल्ट्रा, इन सबको मिला के हम वी सेल अबाउट 6 बिलियन टैबलेट्स एनुअली इन पाकिस्तान, सिर्फ पैनाडोल की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CAC, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर स्टफ. सो वी आर बाय लार्ज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री. सो यू नो जब हम ये प्राइसिंग चैलेंजेस ठीक हुए, वी वर एबल टू डिलीवर बेटर, वी वर एबल टू रीच टू द कॉमन कंज्यूमर्स. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एंड देन अभी ये वाली जो स्टोरी है ना जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट वंस, एंड दैट्स समथिंग दैट टेल्स यू हाउ इम्पॉर्टेंट पैनाडोल एज अ ब्रांड इज़ इन पाकिस्तान. जब फोर्स मेजोर हुआ उस टाइम पे 2022 में सैलाब आए थे. सो बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंपनी, वी डिसाइडेड कि हम जब तक इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते हम सप्लाई करते रहेंगे, इवन इफ इट्स एट अ लॉस, बिकॉज पाकिस्तान में डेंगी, मलेरिया, प्रेगनेंसी, इन सब में पैनाडोल इज़ द ओनली सोल्यूशन, राइट. Yes. जब सैलाब भी हुए तो प्रॉब्लम था. सो उन्होंने कहा कि हमें पैनाडोल के सिरप्स चाहिए, और जो क्वांटिटी उन्होंने मांगी वो बहुत ज़्यादा थी. तो ऐसे कि हमने खैरपुर के लिए रखे हुए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हिट हुआ है. खैर जो जस्ट खैरपुर बट सराउंडिंग एरिया जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वही सेट कि नहीं जैकबाबाद में ज़रूरत है. लेटर ऑन हमने उनको सप्लाई भी किया, बट ही टोल्ड मी अ स्टोरी. ही सेड कि व्हेन ही वेंट टू जैकबाबाद के किसी करीब के एरिया में, तो वहाँ वो मस्कीटो नेट्स और खाने पीने की चीज़ें बांट रहे थे जो सैलाब के इम्पैक्टेड लोग थे. दैट वाज वन ऑफ द बिग कैलामिटीज, राइट. 33 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड. तो एक औरत उनके पास आई, उन्होंने कहा कि आपके पास बुखार का शरबत है. तो इस साइड मेरे पास अभी तो नहीं है, बट मेरी पीछे एक गाड़ी आ रही है, उसमें शायद मेरे बच्चे की चीज़ें पड़ी हैं, उसमें है. तो आप अभी खाना ले लें और मस्कीटो मच्छरदानी ले लें. तो उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बुखार का शरबत चाहिए. थोड़ी देर बाद जब गाड़ी आई तो उसने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने उनको वो पैनाडोल सिरप दिया. तो उससे वो पिलाने लगी. तो उसने कहा कि आप ये बिस्किट ले लें, बच्चे को खिला दें. तो बच्चे को बिस्किट खिलाया और जो है वो पैनाडोल सिरप पिलाई. द डिस्ट्रीब्यूटर ही सेड टू मी कि उसने ये पिलाने के बाद अपना चादर जो उसने पहनी हुई थी वो सड़क के किनारे पे उसने बिछाई
एंड स्टार्टेड प्रेइंग. और वो उस वक्त तक पढ़ती रही, इबादत करती रही, नमाज़ पढ़ती रही, जब तक उस बच्चे को पसीना नहीं शुरू हुआ. अच्छा, स्वेट इज़ अ साइन के बुखार उतर रहा है. एंड ही सेड दैट द वुमेन स्टार्टेड क्राइंग, बर्स्टेड इनटू टीयर्स. एंड वहाँ पे ज़्यादा औरतें बात नहीं करती हैं आदमियों से. शी केम टू द गाय एंड उसको कहा कि उसने मेरे पास आई, उसने कहा कि आपने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई. सो द इम्पैक्ट that a brand like Panadol has. Of course. हम लोग बहुत बार लाइफ सेविंग मेडिसिन पे बात करते हैं, इसमें ऑन्कोलॉजी है या रेस्पिरेटरी है या, बट द बेसिक नीड्स जो कि बुखार सर के लिए I agree. I mean, and I also think Panadol CF. You know, for me, Panadol CF is a savior so many times. You know, and so we are not, you know, directed कि हम tablets ज़्यादा लें. एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टाइम पे भी मना किया जाता है कि आप टैबलेट्स ना लें. बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव लाइक सर्टेन पेन्स व्हिच आर जस्ट नॉट, यू नो, कंट्रोलेबल. सो व्हाट वी डू इज मे बी Panadol CF, एज फार एज आई हैव सीन, हैज डन वंडर्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जब आप दर्द बाहर हो रहा होता है बर्दाश्त के. So it has been a savior. I agree with that. And so you were telling me. Can I stop you here? हाँ. Panadol Ultra is now the best cure for menstrual pain. अच्छा. And inshallah in 2025 there will be Panadol Women in the market. That's actually for Panadol for menstrual pain. Really? Yes. So it's going to. I mean, it's already on trial on stability. Okay. But other than that, Panadol Ultra, which is already in the market, the gold pack. ठीक है. वो Okay. कराची में अभी अवेलेबल है और 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा. Okay. That's actually for menstrual pain. Okay. What about research? Like how much percentage of the revenue goes into research? Research global है. Okay. पाकिस्तान में. पाकिस्तान के अंदर हमारे पास R&D लैब ज़रूर है, हाँ. बट वो लोकल जो नीड्स से रिलेटेड फ्लेवर्स चेंज करना या नई अगर कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो उस R&D लैब के अंदर हम टेस्ट करते हैं. सो वी वर्किंग ऑन सर्टन टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो R&D लैब में हम टेस्टिंग होती है, ट्रायल होती है टैबलेटिंग के लिए. यू नो, इवन जो CSE है, CSE ऑरेंज ग्लोबली हर जगह हम CSE ऑरेंज में बेचते थे. सो आप जो मैंगो शुगर फ्री देख रही हैं, जो कोला फ्लेवर है या जो लेमन फ्लेवर है, वो सारी पाकिस्तान में R&D लैब में ही हमने डेवलप की. बट द स्केल ऑफ दैट जो इतना इस तरह से नहीं है. हमारी 2 लैब्स हैं ग्लोबली जो बड़ी लैब्स हैं, और बाकी रिसर्च सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं. बट दे वर्क ऑन डिफरेंट जोन्स. जोन जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल में जोन A, जोन B, जोन 2, जोन 3, जोन 4. पाकिस्तान जोन 4B एंड जोन 4A, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में कितना गैप है, तो प्रोडक्ट कितनी स्टेबल है. सो जो रिसर्च है वो सारे जोन्स पे होती है, तो पाकिस्तान भी पार्ट ऑफ दैट है. पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग हैं हम. यू नो, द मार्केट इज़ वेरी बिग. सो द टेलर्ड नीड्स जो सोल्यूशंस हैं. मैं यही सवाल करने लगी थी क्योंकि एक तो नॉट जस्ट टेम्परेचर बट ऑल्सो ह्यूमन बॉडी, यू नो, इट कैन वेरी फ्रॉम पाकिस्तान टू सम अदर कंट्री. इट विल वेरी. जैसे CSE है पाकिस्तान के अंदर, हर 2 में से 1 विमेन एंड हर 4 में से 1 मैन आर कैल्शियम डेफिशिएंट. CSE 1000+ के अंदर विटामिन D भी है. अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन D नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी बॉडी में. सो वो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन इज़ फॉर पीपल जहाँ पे हमारे यहाँ विटामिन D की कमी है. विटामिन D की तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी आर नॉट, यू नो, consuming this, and sunlight is like gone from our lives right now. So okay, biggest challenge. I know ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन हो जाता है, याद नहीं आता अचानक से, बट ये है कि क्योंकि आप यू हैव बीन, यू नो, बिल्डिंग दीज ब्रांड सिंस लॉन्ग एंड नाउ यू आर द CEO ऑफ Helion, माशाल्लाह, एंड देयर मस्ट बी मैनी चैलेंजेस एवरी डे. आई नो, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद हो कि यार ये तो मतलब बहुत मुश्किल था ये वक्त निकालना, एंड आई ओवरकम दैट. जो पैनाडोल फोर्स मेजोर था ना 2022 में, जब प्रॉफिटेबिलिटी भी, एग्जिस्टेंस भी, there were a lot of challenges that we saw back then. उस वक्त मुझे लगता है कि हेलियन पाकिस्तान के जो जर्नी में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो वही था. एट अ लेटर स्टेज हमने देखा कि बहुत सारी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी वो चैलेंजेस हुए जो प्राइसिंग के चैलेंजेस थे. उस टाइम पे, यू नो, थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर, टू SIFC एट अ लेटर स्टेज जो SIFC आई, थैंक्स टू अ लॉट ऑफ सीनियर स्टेक होल्डर्स हु अंडरस्टूड द चैलेंज.
पोस्ट कोविड जो पैरासीटामोल की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. हमारा जो एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गया. जब प्राइस रेगुलेटेड थी तो हर साल 7% प्राइस इंक्रीज़ होती थी. जब यूटिलिटी की आप देखें, डॉलर देखें, तो वो इतना बढ़ गया था कि इट वाज द कॉस्ट वाज लिटरली बाय फोल्ड्स वो बढ़ गई थी. और प्राइस 7% अगर बढ़ती रहे तो आप सो आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज वाज एट दैट टाइम वाज सस्टेनिंग. वो कि हम किस तरह से इस चैलेंज से बाहर निकलेंगे. As I said, as a team, we were able to convince the regulators, and we got the price increases. But more important thing, जो biggest challenge था वो due to profitability, due to that sustain कर सकेंगे नहीं है वो challenge. जो बड़ा challenge था वो availability of those medicines था. जो कि हम will we be able to deliver on the promise of self-care? Will we be able to supply the right volumes? जब मैंने अभी आपको कहा that the story about that woman, that was in the same time. आप सोचेंगे सैलाब या इस तरह के challenges हो और पैनाडोल जैसी चीज़ अवेलेबल ना हो. And when you talk about the magnitude and scale, जब 6 billion tablets a year, और मैं सिरप की बात नहीं कर रहा हूँ. सिरप are again another about 5 million bottles, different variants के 4 to 5 million bottles a month. So that's a huge supply. और जब ये जो चैलेंज जो था वो ये था कि we wanted to tell people that we are trying our best, and we did. We continued. वो जो losses थे वो हम बर्दाश्त भी करते रहे. We are also a listed entity. सारे दूसरी तरफ से भी pressures होते हैं. But we continue to deliver on that promise. We continue to deliver. By far हमारी सबसे ज़्यादा supply है. पाकिस्तान में कोई भी pharmacy अलहम्दुलिल्लाह cannot run without Panadol. So during these times, like, do you take stress, do you take pressure, और अब आप समझते कि नहीं मैं इतना emotionally resilient हूँ कि मुझे stress नहीं होता? बहुत stress होता. There are solutions to it. There are ways of countering this. एक तो ये कि जब बहुत ज़्यादा pressure होता है ना तो as an individual we tend to do stuff जो कि आम हालात में अगर हम देखेंगे तो हम नहीं करेंगे. जैसे वो कहते हैं ना कि you know better when it's too late. तो जब हम अब when you look back कि क्या ये चीज़ मुझे इस तरह करनी चाहिए थी, तो वो उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी, राइट. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, जो आपने टीम बनाई हुई है, वो इतनी रेजिलिएंट हो और इतनी डाइवर्स हो कि वो आपको मुख्तलिफ साउंड्स आपके कान तक पहुंचा सके. ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे फिक्स कर सकते हैं. एक तो ये कि आपको लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट. ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैड टू लीड. आई हैड टू बी इन इस्लामाबाद, आई हैड टू नेविगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट माई सपोर्ट सिस्टम, माई रेगुलेटरी टीम, माई फाइनेंस टीम, एंड इवन द फील्ड टीम. अब जब डॉक्टर कह रहा है कि यार मैं नुस्खा तो लिख रहा हूँ या प्रिस्क्रिप्शन तो लिख रहा हूँ बट अवेलेबल तो है नहीं वो, या दुकानदार जो है वो किसी और आप सेंसोडाइन बेचने गए या CC बेचने गए, उनके जब तक पैनाडोल नहीं होगी जब तक तो आप आए नहीं. सो चैलेंज बहुत थे. तो ये जो टीम थी ना, दे वर ऑल्सो समवन जो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की. एंड थ्रू दैट हायरार्की द लेवल ऑफ कंफर्ट दैट आई वाज एबल टू गेट फ्रॉम देम. बट येस, एज आई सेड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जो हर इंडिविजुअल को खुद लीड करनी है. जो मेरी फंक्शंस के जो हेड्स थे वो लीड कर रहे हैं. बट जो मैंने आपको बात की डाइवर्सिटी वाली, देखें देयर आर 2 types ऑफ थिंग्स, 2 types ऑफ डाइवर्सिटी. जो एक वो है जो आम इस्तिलाह में हम बात करते हैं. हाँ. जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी तो वी यूजुअली टॉक अबाउट फीमेल इंक्लूजन इन आवर टीम्स. हाँ. दूसरा जो डाइवर्सिटी है ना फॉर मी, वो जो कि एक नेक्स्ट स्टेप है, वो है डाइवर्सिटी ऑफ थॉट. वो है डाइवर्सिटी ऑफ दोज कल्चर्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ एज. सो हमारी जो टीम है, ये वेरी फेली यंग टीम. बट मैं आपको बताऊँ, हिलियन पाकिस्तान के अंदर वी कैन स्पीक एज अ टीम 29 लैंग्वेजेस. रियली? इनफैक्ट मेरे जो सेल्स डायरेक्टर हैं वो ही हैज़ बीन आफ्टर मी. वो कि एक एरिया है जहाँ पे अगर हमें ब्रोही बोलने वाला मिल जाए तो वील गेट टू 30. सो व्हाट वी हैव एक्टिवली डन इज दैट व्हेन वी हैव बीन मेकिंग आवर टीम, सो लैंग्वेजेस, कल्चर्स, एज, religion, everything is important for us. And the first step है in terms of female, we just 3.5 years back हमारी जो फील्ड टीम मिला के या जो हमारी हेड ऑफिस पे या जो मुख्तलिफ फंक्शन से टीम मिला के, वी वर अबाउट 6% गर्ल्स. टुडे वी आर 23% फीमेल. Really? Wow. So very good. And I'm not saying we compromised on anything. In terms of merit, they were the
ऑफ कोर्स. और इवन विद जहाँ उन एरियाज़ में, उन जगहों पे जहाँ हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि चैलेंज होगा. मैं जब कोविड से जब मैं आया था इधर, अनफॉर्चुनेटली माई फादर इन लॉ पास्ट अवे जब हम 2020 में एंड में जब यहाँ पे आए थे. एंड हम उन्हीं के लिए आए थे यहाँ पे. बट देन आई कंटिन्यूड एज द CEO यहाँ पे. उस टाइम पे कोविड के बाद एंड एवरीवन वाज डाउन एंड बहुत सारे वर्किंग चैलेंजेस भी थे. उस टाइम पे वी डिसाइडेड कि नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी आल्सो नीड टू एम्ब्रेस ऑन द डाइवर्सिटी जर्नी. हालांकि उस वक्त एवरीथिंग वाज क्लोज, बट वी रियलाइज कि एडिंग गर्ल्स इन द टीम्स, जो एक बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की इम्प्रूवमेंट्स भी हैं, बट बहुत सारे आइडियाज़ भी हमारे पास आ रहे हैं. अब जैसे एक फील्ड टीम में गायनोकोलॉजिस्ट के पास जो वुमेन इश्यूज़ के पास की बात करनी है, तो एक मैन टॉकिंग टू अ गायनोकोलॉजिस्ट वुमेन और अ फीमेल GP फॉर वुमेन चैलेंजेस, व्हाई? Let's solve it. Let's have the right people who can understand properly and also and make them comfortable as well. Comfortable के अलावा वो right reasons, right solutions, right Connect कर सकते हैं. it was an active, it was a deliberate move कि हम जो है वो also लड़कियों आप को मेरिट की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक सबसे मजे की बात यह है कि whenever we say परसेंटेज बढ़ानी है खवातीन की, लाइक कोटा भरना है जो कोटा हमने बिल्कुल असाइन भी किया है. नहीं. मैं आपको तो बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है. मैं ये बात काफ़ी बार हमारे इंटरनल भी डिस्कशन हुई है. 2 पोजीशंस हमारी सीनियर लीडरशिप में पोजीशंस थी जो हमें भरने में, दोनों पोजीशंस में 11 महीने लगे. बट वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन, द टीम्स हैड टू वर्क, गो एक्स्ट्रा माइल. इस वक्त हमारी जो लीडरशिप टीम है उसमें 15 लोगों में देयर 7 गर्ल्स. Really? हमारा जो बोर्ड है, 7 big number. हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 7 मेंबर बोर्ड, लीगली रिक्वायरमेंट 1 फीमेल डायरेक्टर की, वी हैव 2 एंड इन फ्यूचर इट विल इंक्रीज. And all on merit. ऑल ऑन मेरिट. अच्छा, वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. अच्छा, जो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑन डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, people were also able to during those challenging times tell me something which was very different. क्योंकि अगर तो सब लोग एक ही तरह बात करेंगे, सब लोग एक ही सोल्यूशन की तरफ सोचेंगे, या सब वही करेंगे जो एक इंडिविजुअल कह रहा है, तो फिर वो इवेंचुअली तो हम एक ही तरह सोचते हुए एक ही डायरेक्शन में जा What were सकते. the different thoughts? चैलेंजिंग थॉट्स वो थी कि हम किस तरह से सप्लाई चेन में मूव कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस पे जा सकते हैं, किस तरह हम प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, Okay. किस तरह सोर्सेज चेंज कर सकते हैं. एवरीवन वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट. और जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं उस चैलेंजिंग टाइम में, या अब या किसी और टाइम में, दिस डाइवर्सिटी ऑफ थॉट हेल्प्स यू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. आई थिंक आज से 7-8 साल पहले 2017 में हमारे यहाँ ना एक वेयर हाउस में आग लग गई थी. जब आग लगी, इट वाज रमज़ान, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6-6:30 बजे वी गॉट टू नो कि भाई आग लग गई है. वी लॉस्ट अराउंड 2 months ऑफ फिनिश गुड्स एंड 1.5 महीने का रॉ पैकिंग मटेरियल. सो हमारे पास फिनिश गुड्स नहीं था, और नया जो रॉ पैकिंग मटेरियल हम इम्पोर्ट करें. और उस टाइम पे जो हमने टीम्स बनाई ना, वो टीम्स थी जिनका फुल सप्लाई चेन एक्सपीरियंस नहीं था. सप्लाई चेन वाले भी थे. वी हैड पीपल फ्रॉम मार्केटिंग, वी हैड पीपल फ्रॉम IT, सो दैट जब वो बैठ के डिसीजन लेंगे, तो जो सप्लाई चेन वाले हैं, ऑल्दो दे नो देयर वर्क, बट दे नो द स्टैंडर्ड वेज ऑफ वर्किंग. उनको जब डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट साउंड्स आएंगे, मे बी देयर सोल्यूशन इज़ द बेस्ट, बट एटलीस्ट कोई ब्लाइंड स्पॉट ना हो. दैट्स समथिंग दैट इज़ हेल्प्ड अस अ लॉट. मैं अब मेरी अपनी डेवलपमेंट की बात करूँ. मैं वाज अ फाइनेंस मेजर. मैंने IBA भी मैं बाद में गया. आई डिड माई MBA इन 2011. स्टार्ट किया 2013 में, ख़त्म किया, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग इन मार्केटिंग. बट जब मेरे उस टाइम के दौरान मैं सप्लाई चेन लीड कर रहा था पाकिस्तान में. मैं लॉजिस्टिक्स देख रहा था, मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था, मैं HR के अंदर गया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया. दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प मी इवेंचुअली, राइट, आर हेल्पिंग मी राइट नाउ. सो वो जो डाइवर्सिटी है ना, वो डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिटी ऑफ स्किल है, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है. Also, आप डाइवर्सिटी पे बात करें, 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे जहन में. डू यू हैव डिसेबल्ड पीपल इन योर टीम? So we have about in our commercial organization we have about right now 2% people who are disability में. मगर डिसेबिलिटी सिर्फ एक नहीं है. जो हमारा जो मिथ है ना, डिसेबिलिटी वो है कि जो कैन नॉट वॉक प्रॉपरली और कैन नॉट वो लिम कर रहे हैं, या देख आई साइट इश्यूज हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ हैं, People can't hear. वो चीज़ जो कांट हेयर प्रॉपरली. सो वी हैव पीपल
what we have also done is that when we were hiring, and those people who are already part of the team, they wanted some level of confidentiality. We have worked with them on confidentiality as well. So Helion is a very, very people-centric organization. यूनिवर्सिटी पे एक क्वेश्चन और था, मैंने डिसेबल लोगों के बारे में पूछा और मुझे ट्रांसजेंडर्स के बारे में पूछना था. इज देयर एनी परसेंटेज ऑफ ट्रांस पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन? सो अभी नहीं है, बट मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक है कि 2 साल पहले हमने इसमें काफ़ी काम किया. वी वर नॉट एबल टू गेट द राइट कॉम्पोजिशन उस वक्त पर नहीं पाया. वी हैव प्लान्स, वी विल बी वर्किंग ऑन इट. हमने 2 साल पहले एक्टिवली फॉर सर्टन मंथ्स हमने काम किया. हमने कुछ NGOs के साथ भी बात की, बट जो स्किल सेट हमारे पास, जो वैकेंसीज थी, वो उस वक्त हमारे पास नहीं हो पाया. बट देर इज सम एक्टिव वर्क दैट हैपेंड एंड विल हैपन. ओके बिकॉज जनरली जब लोग डाइवर्सिटी पे काम करते हैं और इस चीज़ पे काम करते हैं तो दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू नो. एंड वो ये नहीं है कि उनको हायर करने में मसला है, वो ये है कि जब आ जाते हैं यू नो ट्रांस पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो फिर एडजस्ट करने में एंड अदर पीपल नीड्स टू एक्सेप्ट दैट, तो वो एक्सेप्टेंस में बहुत मसला आता है. तो वो चैलेंजेस मैंने देखे हैं लोगों. सो ये डाइवर्सिटी के भी स्टेप्स हैं. ऑफ कोर्स आई एग्री. सो जो आप बात कर रही हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बट जो अभी NGOs वगैरह के साथ जो हम काम कर रहे हैं, हम भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी, वी वांट टू मेक श्योर कि अगर अभी नहीं भी हो पा रहा तो एटलीस्ट वी आर रेडी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो वो चीज़ों पे ऑलरेडी माशाल्लाह देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग. ओके सो यू वर टॉकिंग अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट और मैं यंग प्रोफेशनल्स वो वाचिंग उनके लिए पूछना चाहूँगी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक एट? ऑफ कोर्स आप CEO हैं, आप हायरिंग में इतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट लेट्स से इफ़ यू प्रायोरिटाइज सर्टेन स्किल्स और क्वालिटीज़ और वैल्यूज़, तो वो क्या हैं जो आप किसी भी रिसोर्स में देख कर कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छी रिसोर्स है? मेरी टीम के साथ, तो मेरी लीडरशिप टीम के साथ इस पर डिस्कशन भी काफ़ी होता है हमारा. इफ़ दे आस्क मी टू इंटरव्यू अ कपल ऑफ पीपल कि इन 2 में जो है ना सिलेक्ट करना है, हम वी आर फाइन विद बोथ, एंड आप इफ़ यू वांट टू टेक द फाइनल डिसीजन, माय डिसीजन हैज़ नेवर बीन ऑन टेक्निकल डिटेल्स और टेक्निकल ग्राउंड. For me, passion in terms of self-care is the most important one. पर्सनल डेवलपमेंट? पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना वो दोनों तरफ है. कितनी अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है और कितना हंगर इंडिविजुअल के पास है. वो जो पैशन है ना, टू मेक श्योर कि जो दवाएं हैं, ये जो हेल्थ केयर या जो सेल्फ केयर या देखिए सेंसोडाइन बेचना, इट्स जस्ट अ टूथपेस्ट, राइट? But imagine करें 67% of the people in Pakistan suffer from sensitivity. For them, the experience of tea in the evening with family is impacted if they don't have Sensodyne. And that's where the passion comes. I need to make sure that that individual is able to enjoy that cup of tea with family. That individual is able to enjoy that soft drink, chilled cola, in front of that sports game that he's watching. और that's where sensitivity का solution is Sensodyne. वो passion के साथ ही हो सकता है. If it's not just a toothpaste, it's just not a Panadol is just not a pill. Panadol is that solution जो कि आपको सुकून से सोने दे रहा है और आपके रिश्तेदारों को भी सोने दे रहा है कि यार अब बुखार नहीं होगा, अब सर दर्द नहीं होगा. So that, if you don't have that passion, तो देन आई थिंक मुझे वो शायद मैं हायरिंग में मुझे आई वुड वांट टू गो फॉर पैशन. जो आप है ना, अगर आप मुझे कहें ना कि मेरी लाइफ का अगर कोई ब्लंडर्स भी हैं, हाँ, वो भी इसी में है कि मैं जो है ना टेक्निकल साइड मेरी हमेशा मैं आई वुड काइंड ऑफ यार अगर तो द पर्सन हैज दैट पैशन टू डिलीवर, हैज द पैशन टू गो एक्स्ट्रा माइल, आई एम फाइन. बट मुझे कुछ जगहों पे आई हैव ऑल्सो काइंड ऑफ कोर्स करेक्टेड कि कुछ जगहों पे you have to have the right skill set and experience. Okay. But still, for me, passion is the most important one for me. So आपने ब्लंडर्स की बात की, उसी को टच करूँगी. एंड नॉट जस्ट प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ भी, बोथ सिनेरियोज में वो कौन से ब्लंडर्स है जो आपको याद हैं, बड़े ब्लंडर्स, एंड यू लर्न फ्रॉम दोज, और यंग प्रोफेशनल्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए ब्लंडर्स जो वो हैं,
ब्लंडर्स एज अ डेफिनेशन फॉर मी इज़ वो चीज़ जो शायद आप समझते हैं कि यार नहीं होनी चाहिए थी और मुझसे गलती हो गई. Learnings? If I tell you about learnings, मुझे लगता है कि learning success से भी उतनी मिलती है जितनी failure से मिलती Of course. है. Failures, जो- क्या बताएं? Failures बताएं. That is the right word, I think. You Yeah, know? so I but should- होता ये कि what we are expected is कि फेलियर हुआ है तो उसमें से बस जल्दी से लर्निंग्स निकाले ताकि ये वापस ना हो. मुझे लगता है कि जो रिपीटेबल ग्रोथ मॉडल है ना, दैट्स ऑल्सो एज इफेक्टिव कि यार ये चीज़ मैंने इस तरह से की, इट वर्कड, और उसको मैं किस तरह एम्पलीफाई करके किस तरह और रिपीटेबल बना सकता हूँ. हाँ. राइट. सो जो ब्लंडर्स की बात है ना, वो ब्लंडर्स इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ये समझें कि इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स व्हाट इज़ अ ब्लंडर. सो फॉर मी समथिंग वेयर यू वुड वांट टू अवॉइड रिपीटिंग इट. Okay. जैसे मैंने भी आपको बात की हायरिंग के. सो आई मेड सम डिसीजंस इन द पास्ट जहाँ पे आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर फॉर द इंडिविजुअल ऑल्सो टू नॉट go for the opportunity or the job Okay. because we were able to sell it better to him or her. Oh. क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होता है ना वो एनर्जी, तो यू वांट कि नहीं यार ये कर लेगा, लेट्स ट्राई. येस यू हैव टू टेक दोज रिस्क्स, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि इंडिविजुअल उस पैशन के साथ कितना विलिंग है और कितना आगे अपने पे डेवलपमेंट पे काम कर रहा है. वी वुडंट वांट पीपल टू गेट इनटू अ जॉब एंड देन स्टे देयर. हमारी कंपनी में अभी रिसेंटली भी देयर सो मेनी पीपल दैट वी हैव एक्सपोर्टेड इन मिडल ईस्ट अफ्रीका. कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे कोई फाइनेंस का पाकिस्तानी टैलेंट ना हो जो यहाँ पे काम करता था और हमने भेजा हो. मैं जब 2021 में वापस आया, आई केम बैक फ्रॉम लंदन. माई लीगल डायरेक्टरशिप, ये सब लोग पाकिस्तान में काम करते थे, हमारी कंपनी में काम करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट हुए और फिर वापस आए. माई लीगल हेड केम बैक फ्रॉम लंदन, my finance director came back from Saudi, my marketing director came back from Saudi, my expert head came back from Turkey, You yourself I traveled. came back from London, my उस वक्त मेरे manufacturing head came back from Malaysia, और ये लिस्ट लंबी है. So we were all in Helion पाकिस्तान, या जो हमारा पुराना नाम था, फिर हम बाहर गए और वापस. So important क्या है कि हम पैशन के साथ उन लोगों पे हम भी इन्वेस्ट कर सकें और वो खुद भी विलिंग हो इन्वेस्ट करने के लिए. और then that journey of obviously with the passion, that journey of development and growth starts, and then nobody can stop you. हमने जो हमारे पास एक चैलेंज आता है जो हम यंग लोग हायर करते हैं, अगेन विद द राइट पैशन. एंड जब हमने फॉर एग्जांपल लड़कियां बहुत ज़्यादा हायर की, जो यंग प्रोफेशनल हायर की, तो उस वक्त हमने सोचा कि हम सिर्फ फार्मासिस्ट लड़कियां हायर करेंगे या हम सिर्फ BSc साइंस के माइक्रोबायोलॉजी और इस तरह के, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट हो, एंड देन हम उनको डेवलप करें. तो देयर वाज अ चैलेंज एक आध साल बाद कि टर्नओवर शुरू हो गया. But when I talk to those girls, young boys, the good news is that we were able to give them the right level of experience. Now they're at even better position. So you don't have a problem with them switching in a year. No. What देखिए as an individual, तालियां. as an individual, और बहुत सारे लोग हमारे फील्ड के हमसे छोड़ के जाते हैं. अगर मेरे पास इस वक्त रेडी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली दे विल. तो फर्स्ट तो ये है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी. हमारे मैंने अभी आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करी, मार्केटिंग फंक्शन के अंदर मतलब वी हैव एक्सपोर्टेड पीपल राइट नाउ, दे आर सिटिंग इन स्विट्ज़रलैंड, पनामा, केन्या, मतलब दुनिया भर में वी हैव एक्सपोर्टेड अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारी जगहों पे जो लोग हमसे छोड़ के गए दे कैन ऑलवेज यस कम बैक, बट what we have been able to do is that we have been able to invest in them enough so that now they can fly. So I want Very good perspective, by the way. और हमारी पूरी टीम इज़ नाउ अलाइन्ड विद दिस. पहले हमें होता था कि यार ये छोड़ के जा रहे हो. नाउ we celebrate those successes as well. Now you know somebody who is going on an even better level. हमारे brand managers have gone from senior brand manager to marketing heads of organizations because we have been able to invest in them. So yeah, I think I feel कि अगर कोई छोड़ के आपको जा रहा है तो it's good that आप जो है you should be happy that you've been able to contribute in that growth. Yeah, that's a very good perspective, and I think I don't remember anybody giving me this perspective on job switching.
So you don't really think there is a specific target year, कि 3 साल होने चाहिए या 2 साल होने चाहिए या 4 साल तो लगाना ही चाहिए, या जेन जी तो बहुत जल्दी जॉब स्विच करती है. जनरली जो मुझे पर्सपेक्टिव मिलते रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा भी वही पर्सपेक्टिव है कि बहुत जल्दी स्विचेस हो जाते हैं. बट आई थिंक यू have actually given us a different and new perspective. देखिए, स्विच करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्विच करना, दैट्स वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम. पर्पस क्या है ये देखना ज़रूरी है. देखिए, वी आर ऑल इन फॉर अ लॉन्ग हॉल. ये जो ये स्प्रिंट नहीं है. दिस इज अ मैराथन जो हमें भागनी है, और लंबी भागनी है, एंड वी वांट टू अचीव मोर एंड मोर. मुझे जो चैलेंज नज़र आता है ना, जेनजीज या जो वो दे गेट बोर्ड वेरी जल्दी, या दे वांट टू डू स्टफ वेरी क्विकली. और वहाँ मुझे है कि आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस चाहिए. और जो एक साइकिल गुजरता है ना, तब आप अंदाज़ा होता है कि क्या क्या चीज़ें जो नए तरीके से हो सकती हैं. अब इवन जस्ट फॉर अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, अ मार्केटियर, उसने 4 सीजन्स ही नहीं देखे उसकी प्रोडक्ट के साथ, इस विंटर्स में क्या इम्पैक्ट होगा, समर्स में. तो देन तो वो, और मुझे लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम उस सीज़न में या उस साइकिल में यू लर्न. हाँ, राइट. या यू अनलर्न द ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग, एंड देन जो कंट्रीब्यूशन और जो अपॉर्चुनिटी टू मेक दैट चेंज जो आता है, वो नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट साइकिल में आता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर थ्रू विद अ कपल ऑफ साइकिल्स, तो वो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आएगा. वो आपको भी नेक्स्ट जॉब में बहुत फ़ायदा देगा, बहुत क्लैरिटी देगा. What are the other Gen Z blunders you see? अच्छा, ब्लंडर नहीं कहूँगा मैं इसको भी. इसको ये कहूँगा कि शायद हम जो देखिए, मेरी जनरेशन में हमें 4-4 घंटे हम वी वुड फ्लाई काइट्स, राइट. सो द पेशेंस लेवल जो हमारे साथ था, वो अब नहीं है कि जब आपके पास रील्स हैं और वो तीसरे सेकंड में आपने कहा नहीं यार ये वाला मुझे नहीं देखना, नेक्स्ट. तो वो तो होना है, राइट. दैट्स वेरी नेचुरल. इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब में भी जब टेड टॉक देख रहा हूँ या कोई यूट्यूब में कोई काम की चीज़ देख रहा हूँ, तो मैं 2x स्पीड या 1.5x स्पीड में देखता हूँ, राइट. बिकॉज अगर 30 मिनट की है तो व्हाई नॉट वॉच इट इन 20 मिनट्स, राइट. और वो मैं शायद 1.5 में देख रहा हूँ, जो यंगर हैं वो शायद 2 पे देख रहे होंगे, राइट. बट दैट्स दिस. सो यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ब्लंडर है, बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज. मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दे नीड टू सी द अदर साइड, कि किस तरह से जो पूरे टाइम साइकिल गुजरने के बाद की जो लर्निंग है ना, वो उनको बहुत बेटर रीच देगी. दे विल बी एबल टू हॉप बेटर. And what are the positive sides of Gen Z that you have experienced? अच्छा देख, जो मैंने बहुत मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए. सही है, जो चेंज वाला जो साइकिल है ना, वो मैंने बहुत देखे, बहुत सारे रीस्ट्रक्चरिंग्स, तोड़ फोड़ कंपनीज. मगर मैंने देखा है अपने पूरे करियर में कि जो द डिफरेंस बिटवीन द जेनजीज एंड द एल्डर वंस इज, जो चेंज है ना, वो ऊपर ज़रा डिफरेंट है टू ब्रिंग. जो जेनजीज के साथ जो अच्छी चीज़ है ना, कि दे आर एबल टू एम्ब्रेस दैट चेंज. जो अडेप्टेबिलिटी है ना, वो बहुत बेहतर है. वो इंक्विजिटिवनेस ज़्यादा है. देख लेंगे, हो जाएगा, खैर है. ऑल्सो दिस, और इवन इन द वर्क, सो इफ दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंटली, दे विल डू इट डिफरेंटली एंड दे विल ट्राई थिंग्स डिफरेंटली. सो वो एजिलिटी, वो मैं ये चाहता हूँ. और ये मेरा, इफ यंग पर्सन आस्क मी, यूज दैट इंक्विजिटिवनेस, that energy, that acceptability of change, together with that passion, and work on your own self and have some patience. आप बहुत लंबी रेस पे जाएंगे. एक और भी चीज़ है कि अगर आपने कोई ग्रेजुएशन करके आया है या मास्टर्स करके आया है. I did my CA in 2005. I completed my MBA in 2013. 2002 में मेरा ICA में भी हो गया. मुझे MBA की ज़रूरत नहीं थी. और इसी तरह मेरे साथ के, मेरे टाइम के ज़्यादातर लोगों के साथ यही, बहुत सारे लोग फिर दे वेंट ऑन टू मास्टर्स करने के लिए और गए. यंग पीपल विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स. जब एक यंग इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेगा ना, वो अपना ग्रोथ का प्रॉब्लम अपने पास से उठा के अपने लाइन मैनेजर को दे देगा. इफ़ यू आर गुड इनफ with the right level of passion,
एनर्जी, इंक्विजिटिवनेस, आपके लाइन मैनेजर को आपकी ज़रूरत है. एंड कीप डेवलपिंग योर सेल्फ, गेट द राइट टूल्स, वो जो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव, वो जो Highly effective people. स्टीवन कवी का, कीप शार्पनिंग योर सॉ, राइट? सो इफ यू डोंट डू दैट, तो फिर तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉपिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ Wow. चेंज, that wouldn't help. Very good perspective. So, you're going to get a lot of love from Gen Z, I'm super sure. तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस पर भी आपका पर्सपेक्टिव जानना है. एंड इज़ देयर अ थिंग लाइक दिस इन योर लाइफ, या वर्क ही है, बैलेंस नहीं है? वर्क लाइफ बैलेंस है ना, इस पे आज से नहीं, आई थिंक इफ़ यू इवन गो बैक 30 years, हमेशा से बात होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. फिर अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आई वर्कड इन द UK, आई वर्कड इन सऊदी, एंड तो वहाँ पे ज़रा डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलप वर्ल्ड फ़र्क भी होते हैं, और ये डिस्कशन डिबेट बहुत मैंने सुनी भी है. एक दूसरा पर्सपेक्टिव है विच इज़ वर्क लाइफ हार्मनी. वर्क लाइफ बैलेंस में हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि भाई काम 5:30 के बाद बंद कर दें, मुझे फैमिली को टाइम देना है, या सैटरडे को क्यों कॉल कर रहा है बॉस. वर्क लाइफ हार्मनी में अब आज मिसाल के तौर पे इफ़ आई डोंट हैव टाइम ड्यूरिंग द डे टू वर्क, आई शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं रात को काम कर लूँ. जस्ट इन द मॉर्निंग आई वाज टॉकिंग टू माय रेगुलेटरी हेड एंड ही सेड कि वो उसको नज़ला बहुत हो रहा है, तो उसने पैराडोल CF पी ली थी, तो वो उसको बहुत ड्राउजीनेस हो रही है. सो ही सेड मैं आपको रात को सबमिशंस कर दूँगा. आई सेड फाइन. Now the time that individual has to give to himself, and there are times when you have to give time to your family. When there are times when the personal side is more important. So the environment should be कि वो harmony हो, ताकि वो individual इतना flexibility ले सके कि वो अपनी family को, अपने आप को time दे सके. Right? जो मैंने आपको बताया कि केयर गिवर पॉलिसी और those leaves, that's actually towards allowing and helping people to make sure कि वो harmony रहे. और there are times when you'll have to deliver. There are times when you have to, आज अगर कोई deadline है, कोई हम बड़े project पे काम कर रहे हैं, तो maybe मेरी family के साथ जब when they'll see कि जब उनको ज़रूरत है, या जब मुझे अपने time की ज़रूरत है, तो मुझे वो time मिल रहा है, तो then work can take priority and longer hours, weekends. So I think वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो जो हार्मनी है ना, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. यार, आई लव दिस पर्सपेक्टिव एंड a lot of people do not prioritize this. I mean, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, but so many CEOs and HR professionals specifically जिनसे मैंने बात की है, even if they think this way, this is not practiced in the organizations. There are so many people जो शायद इस नज़रिए से सोचते भी हैं, पर वो प्रैक्टिस नहीं होता. एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ समथिंग जिससे लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये हमने दे दी फ्लेक्सिबिलिटी, तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे. हाँ, आउटपुट उस तरह से नहीं मिलेगी. देखें, द रीज़न वाई यू नीड द राइट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इन द टीम इज़ कि वो जो जेल करेंगे ना, जो बॉन्ड करेंगे, उसके बाद डिलीवरी नेक्स्ट लेवल हो. जो कमिटमेंट है, जो पैशन है, वो उसी वक्त बाहर निकलेगा जब आप उन पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या अच्छा, मैं आपको रोज़ कहूँ कि यार 9:01 पे आप आई हैं, तो अब आपकी लेट लगेगी. सो योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वुड बी टू मेक इट ऑन टाइम. नाउ मैं अगर आपसे डिलीवरेबल पे ही बात करूँ, तो चाहे वो 10:30 बजे हो सुबह, या चाहे एट अ लेटर आवर हो, दैट्स बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिलीवरेबल. दूसरा, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा होंगी ग्रो करने की, जब आपको पता है कि इफ़ आई डू दिस आई विल गेट दिस. हाँ, दैट्स इम्पॉर्टेंट. वो इस तरह से है कि यार, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू मार्केटिंग, इफ़ यू वांट टू गेट दैट स्पेसिफिक ब्रांड, यू वर्क हार्ड एंड यू हैव सीन पीपल गेटिंग इट. हाँ, एग्जाम्पल्स हैं इदारे में. आई एम एन एग्जाम्पल. आई केम फ्रॉम फाइनेंस. इट वॉज, आई वेंट टू लंडन. वहाँ से जब मैं वापस आया एज अ CEO, आई हैड नॉट डन मार्केटिंग, आई हैड नॉट डन सेल्स, बट द कंपनी वॉज एबल टू एक्सपेरिमेंट एंड माशाल्लाह. लवली. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इन्वायरमेंट आपने सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से नहीं करना कि यार everyone is there at 9 o'clock. देखें, भले 5:30 बजे चले जाएं. अच्छा, मेरे साथ मुझे पता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अभी 2 दिन पहले मंथ एंड था, महीने बाद ईयर एंड होगा. द सप्लाई चेन टीम
मुझे पता है जो वेयर हाउसिंग टीम है, जो लॉजिस्टिक्स टीम है, जो ये सब लोगों का जो ईयर एंड होगा उसमें ईयर एंड में दे विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स. अगर 31st of December is on a Sunday, तो दे विल बी देयर ऑन अ संडे. You understand what I'm saying? So क्योंकि वो dispatches और सब कुछ करना है. But what I need to make sure is that they are equally given that space when they need it. So अगर for example second week of January में या third week of December if they want to prioritize their own well-being and their family, do that. CEO of the year का अवार्ड मिला था क्या? Love it, I love it, and the perspectives are really beautiful and positive, and so अच्छी बात ये है कि ये practice हो रहा है. ये सिर्फ पर्सपेक्टिव सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है. These are being practiced, and of course your employees can say that. I hope that people learn from you, and I hope that young professionals who are watching, वो सीखा तो एक तरफ, लेकिन वो स्क्रीन पे बैठ के ये ऐसा होना चाहिए CEO, ये वाला एटीट्यूड आ रहा होगा. वो हम लिंक्डइन पे चेक करेंगे ऑफ कोर्स जब क्लिप्स जाएंगी. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बिफोर क्लोजिंग द इंटरव्यू, कोई लास्ट एडवाइस या टिप आप देना चाहें? I think one advice I have that whatever you're doing, if there is no passion, वो कहते हैं ना कि आप वो काम करें जो आप you love doing. I think you'll have to find love in what you do rather than find what you want to do. In a lot of areas, and if you are a professional at a later stage of time life, आपको अंदाज़ा होगा कि the more you work hard, the better you achieve in terms of professional side, but also start finding that passion. अब आज मेरी कंपनी के अंदर या हम हेल्थ केयर के अंदर, the passion is when you talk about those moments, when you talk about that woman at the side of the road, जिस अगर आज मैं मेहनत नहीं करूँगा या मेरी टीम का वो पैशन नहीं होगा in terms of delivery, तो then that individual सोचें हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या far reaching impact है हमारे पैशन का या हमारे मेहनत का. So when an individual can understand this will change the perspective of how things work. I have seen people, I've seen my team, जब challenges आए ना, they were willing to go, I wouldn't say extra miles and miles, because they knew कि ये product, ये दवा, ये solution ज़रूरी है. And we were able to convince our stakeholders. If Pakistan as a nation, if we as corporate citizens, if we as Gen Zs or the younger ones or the oldies, we want to be successful, we'll have to understand that there are lots of people that are dependent on what we do, how we work, and what are the deliverables that we have to come and work on. Things would change. We'll have to find love in what we do. Wonderful. Thank you so much for being with us, and thank you for sharing these wonderful advices.